सो चैप्टर नंबर 12 हाउ साइकोलॉजिस्ट स्टडी। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग स्टडी किस तरीके से करते हैं। लेट्स सी, in the previous lesson we had learned about the nature of psychology, what psychologists do, psychologists जो होते हैं वो क्या करते हैं, different branches of psychology क्या क्या थी। ठीक है, हमने वो भी देखा फर्स्ट चैप्टर में एक्सेट्रा। now you will understand the important place which psychology has acquired among various disciplines. Today there is a considerably interest among common people, policy makers, students, professionals and businessmen and women in the learning about psychology as a discipline। ठीक है, अब जैसे हर एक लोगों को पता चलने लगा है साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसका इम्पोर्टेंस पता चलने लगा है, हर एक प्रोफेशनल्स हर एक फील्ड के लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता चलने लगा है। उसके हिसाब से सब लोग इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। एज वी नो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रेन। साइकोलॉजी क्या है? इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रेन, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, माइंड एंड बिहेवियर। एंड साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट देयर स्टडीज बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग उनकी स्टडीज को ये साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल कर करते हैं। In this lesson you will study about the various methods, techniques and tools that psychologists use in their research and study. Let's see किस तरीके की स्टडीज जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट जो लोग जो होते हैं वो यूज करते हैं उनके रिसर्च में और उनकी स्टडीज में। Let's see in detail. Goals of psychological studies and research. As a science, psychologists try to understand the nature and functioning of behavior and experiences. They try to answer questions regarding various physiological processes like memory, thinking, learning, perception, intelligence, etc. In doing so, the researchers or investigators adopt a scientific perspective. They make efforts to develop knowledge of phenomena in such a manner that can fulfill the requirements of science। जो requirements fulfill कर सके। ठीक है, knowledge of phenomena in such a manner, इस तरीके से that can fulfill the requirements of science, जो साइंस के requirements को fulfill कर सके। Here science refers to the method of systematic inquiry। साइंस क्या करता है, कैसी मेथड को रिफर करता है जिसकी सिस्टमैटिक इंक्वायरी हो, which is based on unbased observation, जो unbased observation पे based हो। ठीक है, in this way scientific knowledge becomes available for scrutiny by any person who wants to understand and verify the same। ठीक है, in this way scientific knowledge becomes available for किसके लिए? scrutiny by any person who wants to understand, जो जानना चाहता है, and verify the same। This is why scientific knowledge is made available to all। ठीक है, इस वजह से scientific knowledge क्या है, हर एक के लिए अवेलेबल करवा के दिया गया है। In everyday life, our observations are often based by our linkings or dislikings। ठीक है, in this way scientific knowledge becomes available for scrutiny by any person or wants to understand and verify the same। जो understand करना चाहता है और जो verify करना चाहता है उन लोग के लिए available होता है। This is why scientific knowledge is made available to all। ये हर एक के लिए scientific knowledge एक सब्जेक्ट की तरह हर एक उसमें पार्ट में आता है। ठीक है, इसकी वजह से हर एक को ये चीज़ों के बारे में पता चले, साइंटिफिक चीज़ों के बारे में। इन एवरीडे लाइफ आवर ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ्टन बेस्ड बाय आवर लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स। ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशंस कैसी होती है, जो हम लोग किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हम जिस चीज़ों को चाहते हैं, जो चीज़ों को हमें अच्छा लगता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स जो होती हैं उसके बेसिस पे। इनफैक्ट वी एक्सेप्ट व्हाट अदर्स से। ठीक है, हम लोग ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं। Our casual impression becomes part of our personal understanding, which may be wrong or right। ठीक है, sometimes हमारा कैजुअल जो इंप्रेशन होती है becomes a part of our personal understanding। हमारी खुद की समझ के लिए हम लोग जिस तरीके से समझते हैं कोई चीज़ को समझना चाहते हैं, हम लोग जो समझते हैं
जो भी वो कभी कभी क्या हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग जैसे देखकर जिस चीज को समझ रहे होते हैं एज पर द कंडीशन, वो समटाइम्स सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइंटिस्ट relies only on the observation which are not influenced by personal differences but are free from such bases. Similarly, scientific knowledge is not anybody's personal property. ये किसी का personal property नहीं है. Scientific knowledge is not anybody's personal property. You must have heard about scientific journals. If you get a chance to go through a journal, you will find that the way a scientific study is conducted is fully described or documented. In other words, the knowledge is public. Knowledge is public and open to anyone. ठीक है, इसको ऐसा कहा गया है कि knowledge क्या है, is a public और वो open है to anyone who wants to have access to it. जिसको भी वो चाहता है, जो भी चाहता है, उसके लिए ये available है. The documentation of research is useful for another purpose. Such a study can be replicated by any person who wants to conduct the study himself or herself. उसके हिसाब से भी अगर उसको करना है तो भी वो कर सकता है, conduct कर सकता है. Finally, the scientific study is objective. It is supposed to be free from subjective factors and it is seen. ये subjective factors से different होना चाहिए और वो दिखना चाहिए. Observed or experienced in the same way by each and everyone who follows the given method. Psychologists have accepted scientific methods and tried to generate knowledge which stands well on the above mentioned criteria for a science. A scientist they try to achieve the following goals. ठीक है, क्या-क्या goals को achieve करने का try किया regarding the objective of the study के objectives के हिसाब से पहला है description. The first step towards the gaining understanding is to obtain a proper or systematic description of the phenomenon under study. It determines the range and boundary of the phenomenon. तो उसके जिस भी चीज के बारे में वो सर्च करने जा रहे हैं उसका एक फुल्ली डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, जिसके बेसिस पे सारा के सारा रिसर्च हो सकता है. तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिनोमेना अंडर होना चाहिए. और वो क्या डिफाइन करेगा, उसकी रेंज और उसकी बाउंड्री ऑफ द फिनोमेना, मतलब कि उसकी लिमिटेशंस पता चलेगी कि इतनी लिमिटेशंस इसकी है. एक्सप्लेनेशन मींस स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द फिनोमेनन अंडर स्टडी. तो उस चीजों को, जो चीजें उसमें मेंशन है उसको मतलब प्रेजेंट कर सके, उसका कुछ ऐसी चीजें कि उसको एक्सप्लेन कर सके. ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स one may say that explanation provides the factor which makes something happen. जो हुआ हो उसका factors, उसके reason, उसके causes, वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए. Thus, when a physiologist to show that practice lead to change the behavior, he or she is explaining a learning. तो जब भी वो किसी चीज का explanation दे रहे होते हैं, मतलब शो कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जब किसी चीज को बता रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब मतलब बिहेवियर चेंज होने के कारण जब बता रहे होते हैं तो वो एक्सप्लेनिंग द लर्निंग, उनकी जो भी लर्निंग्स है, जो भी वो जानते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं. प्रेडिक्शन मतलब क्या है, वंस वी आर एबल टू गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सम फिनोमेना वी आर इन द पोजीशन टू टेल और प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, तो हम लोग कोई चीजों के बारे में अगर पता चलता है, एक्सप्लेनेशन सम फिनोमेना के बारे में, वी आर इन द पोजीशन, हम लोग उस पोजीशन में होते हैं कि टू टेल और प्रेडिक्टेड व्हाट विल हैपन. तो हम लोग क्या करते हैं, क्या होने वाला है ऐसा कुछ प्रेडिक्ट करके हमारे हिसाब से उसको समझाते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं व्हाट विल हैपन अंडर सर्कमस्टेंसेस. इस तरह की सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या क्या हो सकता है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है, The ability to make prediction is based on systematic analysis. तो ये जो लोग, ये हमारी जो एबिलिटी है प्रेडिक्शन करने की, प्रेडिक्ट करने की, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, तो वो क्या है, इट्स अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द वेरियस कैजुअल फैक्टर्स. कैजुअल फैक्टर्स की कुछ सिस्टमैटिक एनालिसिस होती है, उसके बेसिस पे द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस those factors can help one to tell what will happen in future. तो presence और absence of this factors, ये जो factors है उसके presence absence की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, can help
1 to 10 व्हाट विल हैपन, तो एक हेल्प कर सकता है एक को क्या कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये बताने के लिए हम लोग के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। कंट्रोल है फोर्थ वन, द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट प्रोवाइड्स द नॉलेज नेसेसरी टू ब्रिंग द चेंज that is desirable. For instance, use of polio vaccine prevents the occurrence of polio. Similarly, practicing yoga or relaxation can be used to improve health and quality of life of the people. इधर इन्होंने बताया कंट्रोल किस तरीके से, the ability of predict provides the knowledge, ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं उसमें क्या होता है, प्रोवाइड द नॉलेज, वो हमें नॉलेज कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, नेसेसरी टू ब्रिंग द चेंज इट इज डिजायरेबल, तो वो चेंज लाने के लिए हम लोग, ठीक है, चेंज नेसेसरी टू ब्रिंग द चेंज, उसमें से कुछ चेंजेस आए जो डिजायरेबल है, जैसे कि यूज ऑफ पोलियो वैक्सीन प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ पोलियो, ठीक है, पोलियो की वजह से जो इश्यूज होते हैं पोलियो न लेने की वजह से, सो ये सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग द ड्रॉप्स ऑफ पोलियो इस्तेमाल करता है। सिमिलरली प्रैक्टिसिंग योगा और रिलैक्सेशन कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है, योगा करने से और एक्सरसाइज करने से क्या हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्थ इंप्रूव हो सकता है लोगों का। दिस नॉलेज कैन यूज्ड टू प्रोवाइड रिजल्ट्स डिजायर्ड बाय द यूजर ऑफ द नॉलेज, ठीक है, नॉलेज का भी यूज कर सकते हैं कि एक पर्सन ने जितना डिजायर किया है उतना उसको देने के लिए नॉलेज यूज कर सकते हैं। दिस हाउएवर इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव साइंटिफिक नॉलेज, ये तभी पॉसिबल होता है कि जब वी आर हैविंग अ साइंटिफिक नॉलेज। Basic and applied research. Basic and applied research. To get in-depth study of research, psychology has considered mainly the basic and applied research. Let us know more about the basic and applied research. Any study or research begins with a question. जो भी स्टडी हम लोग करते हैं वो रिसर्च जो करते हैं वो सब एक क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं और अ प्रॉब्लम दैट वी वांट टू आंसर, और वो एक प्रॉब्लम के साथ भी हो सकता है जिसको हमें आंसर करना है और सॉल्व। सच प्रॉब्लम्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ये प्रॉब्लम्स वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। वन ब्रॉड वे टू क्लासिफाई दिस प्रॉब्लम्स इज टू पुट देम इन अ बेसिक एंड अप्लाइड कैटेगरी। बेसिक और अप्लाइड कैटेगरी में इसको पहले रखने के बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं। फर्स्ट, बेसिक रिसर्च डील्स विद द डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। बेसिक रिसर्च कैसे डील कर सकते हैं विद द डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट करके उसके बारे में नॉलेज ज्यादा गेन कर उसको हम लोग कर सकते हैं। थियरी बिल्डिंग एंड टेस्टिंग ऑफ थियरी एंड अप्लाइड रिसर्च डील्स विद द सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये बेसिक थियरी के बेस पर होता है। बेसिक जो होता है, बेसिक रिसर्च डील्स विद द डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, थियरी बिल्डिंग एंड टेस्टिंग ऑफ थियरी, इधर तक सीमित है, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ थियरी। और अप्लाइड रिसर्च जो है वो डील किसके साथ करता है कि सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल करता है अप्लाइड रिसर्च। It may be noted that the line demarcating these two types of research is very thin. Also, there can be movement from theory to application or from application to theory. ऐसा मतलब vice versa हो सकता है, application से theory की तरफ और theory से application की तरफ। In a practice, applied research involves development of technology to solve specific problems that are faced in a personal, familial, health, organizational and environmental areas also. In fact, many new branches of psychology have emerged which are predominantly applied in nature. This emphasis is so attractive that many universities offer courses in applied psychology or its various specialized area. ठीक है, स्पेशलाइज्ड एरियाज में भी ये सारी चीजें मतलब सिखाई जाती है, इंस्टीट्यूशंस में सिखाई जाती है। एम्फेसिस ऑन अट्रैक्टिव दैट मेनी यूनिवर्सिटीज ऑफ कोर्स इज अप्लाइड फिजियोलॉजी और इन प्रैक्टिस अप्लाइड रिसर्च इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो होता है किस लिए, टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दैट आर फेस्ड इन अ पर्सनल
जैसे कि वो पर्सनली हो, फैमिलियल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो या एनवायरमेंटल एरियाज में हो, ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट मेनी न्यू ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैव इमर्ज्ड व्हिच आर प्रीडोमिनेंटली अप्लाइड इन नेचर, ठीक है। इन दिस emphasis is so attractive there may be there are many that many universities offer courses in applied psychology or its various specialized areas, ठीक है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जिसमें इस तरीके के कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, से स्टडीज दी जाती है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स भी होती हैं, ठीक है। वेरियस स्पेशलाइज्ड एरियाज में भी इसे किया जा सकता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन basic and applied studies is the psychology may be indicating as follows. The basic research focuses on providing the theoretical understanding. Basic research में क्या आता है? Theoretical understanding होती है, ठीक है। It offers understanding in terms of principles. Principles दिए जाते हैं, laws कुछ तो बताए जाते हैं, which are not confined to limited circumstances or a person, ठीक है। In contrast, applied research has a narrow goal of solving a very specific problem, ठीक है। और उसके कंपेयर में क्या होता है? Applied research जो है has a narrow goal, उसका गोल है of solving a very specific problems। इसमें specific problems को solve करने के तरीके होते हैं। It is concentrate in its original orientations and confines itself to a limited condition. Today, psychological knowledge is growing in a basic as well as applied direction, and there is a mutual give and take between the two. ठीक है? The scope of psychology is expanding in a big way to contribute to the enhancement of quality of life of a people. ठीक है? ये बहुत ज़्यादा helpful साबित हो रहा है। Expanding in a big way to contribute to the enhancement, इसलिए quality of life improve हो, quality of life of the people. For instance, developing an intervention programs to help children with learning disability or for किसके लिए जो studies के able नहीं है करने के लिए, और for people suffering from anxiety, और जो ऐसे लोग भी हैं जो anxiety से suffer कर रहे हो, is applied research। उसके बाद है 2.3 experimental method। In a simple language, an experiment may be defined as observation, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन हमने देखा, ऑब्जर्वेशन अंडर कंडीशन व्हिच कैन नॉट कंट्रोल और वेरी। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड इज जनरली प्रिफर्ड अबाउट अदर मेथड्स बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कैजुअल फैक्टर्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? वो जनरली आर प्रिफर्ड above other methods, जैसे कि because of its ability to understand the causal factors, and experiment is concerned about the study of relationship between changes in the adjacent condition and corresponding changes, ठीक है। corresponding changes में और जो एक्सीडेंट है, चेंजेस जो देखने मिलते हैं कंडीशंस पे, तो उन दोनों का रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच का इन द कॉन्सिक्वेंस। The experimental method helps psychologists establish cause, और ये कैसे साइकोलॉजिस्ट को हेल्पफुल रहते हैं कि उसके कॉजेज बना सकते हैं एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू सेट्स, और रिलेशनशिप बिटवीन ये दोनों सेट्स के बीच में ऑफ कंडीशंस which are usually considered as a variable. To understand it, let us take an example. Let's see the example. Suppose a teacher wants to know if rectification method will aid retention of poem, then silent reading. She will proceed as follows. ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया. Suppose a teacher wants to know if the rectification method will. Suppose a teacher wants to know if the recitation method will aid retention of a poem, then silent reading she will proceed as a follows. जैसे कि क्या forming a hypothesis देखते हैं. Forming of hypothesis to answer a problem that a teacher has a question or a problem in which effect of one thing, जैसे recitation method on the other retention has to explore, ठीक है.
On the basis of her previous knowledge and researches, the experimenter E forms a hypothesis. In a present case, the teacher states a possible answer to the problem. She may be hypothesize that the recitation method is better for retention of a poem. To verify the hypothesis, she will undertake an experiment. ठीक है, जैसे कि वो उन्होंने उनके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने इतना पता किया कि अगर कंटिन्यूस बेस पे एक ही चीज़ को रिपीटेडली पढ़ाई जाए, मतलब उनको बोलवा कर किया जाए, उसको एक सॉन्ग की तरीके से गवाया जाए, सो इट विल बी वो एक अच्छा तरीका होगा कि वो बच्चे जल्दी से उसको रिमेंबर करेंगे, मतलब वो जल्दी से वो पोएम याद रहेंगे। एक ही साथ में अगर सब लोग बोलेंगे, सो समवेयर उसका इफेक्ट होगा कि उनको जल्दी से याद रहेगा उनका, ठीक है। सो ये उनका ऐसा एक्सपेरिमेंट रहा, उनका जो एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंगली उन्होंने इसका आंसर दिया। आइडेंटिफाइंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू understand the experimental method, one must be familiar with the concept of variables. Variables is an measurable attributes of objects, things or beings। ठीक है, variables क्या है, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, attributes of object, things and beings। Quantitatively measured variables are age जैसे है, intelligence है, number of trials है, sex, religion, caste, etc. The E is concerned with two main kind of variables, जैसे कि independent variable I, ठीक है, V, and dependent variable D, V, इस तरीके से। An independent variable is manipulated by the E, example method of learning is the IV, मतलब independent variable in the present case, in order to understand its effect on some chosen aspect of behavior। उसका मतलब इस इफेक्ट क्या हो रहा है उसका, ठीक है, जिस जो भी हमने सिलेक्ट किया उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, हमने जो एस्पेक्ट सिलेक्ट किया है बिहेवियर पे। लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ IV are observed on the DV। एग्जांपल जैसे रिटेंशन इज अ प्रेजेंट एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉन्सिक्वेंट वेरिएबल ऑन विच द इफेक्ट इज टू बी ऑब्जर्व। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें इफेक्ट पता चलेगा कि कंटिन्यूस बेस पे से बुलवा कर उनसे एक सॉन्ग के वे में उस पोएम को रेसिटेशन करवाना, मतलब गाना गवा कर उनको ये चीज़ को बताना, तो वो क्या होगा कि जल्दी से वो लोग कैप्चर करेंगे। ठीक है, ये उनका उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, तो इन्होंने बताया। while studying the effect of IV on DV, ठीक है, IV का DV पे क्या इफेक्ट है, the relationship is often influenced by the number of factors present in the environment। तो इसकी वजह से number of factors कितने अवेलेबल हैं environment में, उसका इफेक्ट देखने मिल रहा है। Influenced by the number of factors, जितने लोगों मिलकर इसको मतलब इसका रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। Such relevant variables needed to control by the E। अब ये जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, by E। The E plans the experiment using two groups। तो E ने ये प्लान किया, ठीक है, कि इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए using two groups, experimental and control, ठीक है। The experimental group receives the treatment of IV। तो experimental group ने क्या रिसीव किया, treatment of IV, and control group performs in the absence of IV। और control group perform किया in the absence of IV। These two groups are supposed to be similar in all respect as except the treatment of IV। IV के ट्रीटमेंट के अलावा इनको क्या करना है, इन ग्रुप को सपोज टू बी सिमिलर, और बाकी सारी कंडीशंस में सिमिलर रहना है, ठीक है, ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट सिर्फ द ट्रीटमेंट ऑफ IV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद था सैम्पलिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। The next step is to decide the population to be selected for the study and deciding on the method of selecting a sample, ठीक है। For example, if one wants to take the student of 10th class for experiment, ठीक है, she can not possibly go to the schools, so she decide to take equal number of students of a 10th class of one school। एक स्कूल के उसने 10th क्लास के स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। A sample represent the whole population। One has to decide which type of sampling method should be used। तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी तरीके की सैम्पलिंग मेथड वो यूज करें। Random sampling is considered to be the best method because in this way of sampling all members of population have equal probability of selection। अब random
मेथड अगर यूज करेंगे जिसमें रैंडमली उन्होंने किसी को भी जाके उठाया दैट यू स्टैंड अप आप उन लोग को एक सिलेक्ट किया, तो उससे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। इंस्टेड के हम लोगों ने कोई उसमें एक मैटर डाल दी कि भाई ऐसा होना चाहिए सो ही कैन पार्टिसिपेट, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग अपने आप ही बहुत कम हो जाएंगे और प्रॉपरली सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम अदर वेरिएबल्स लाइक एज, प्रॉब्लम, जेंडर एक्सेट्रा में अफेक्ट रिटेंशन। ये प्रॉब्लम्स रिटेंशन को अफेक्ट कर सकती है। All these variables have to be controlled. इन सारे को कंट्रोल करना पड़ेगा। In order to do so, the E-select participants of similar intelligence. तो इन्हें क्या किया, इसको ध्यान में रखते हुए पार्टिसिपेंट ऐसे सिलेक्ट किए similar intelligence, age and gender, इनके सिमिलर हो। Experimenter may use a number of techniques to control the unwanted extraneous variable. तो unwanted जो है सभी को सिलेक्ट करना ही पॉसिबल नहीं होता है, तो इस वजह से ये क्राइटेरिया डाल दिया कि ये पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, इतना इंटेलिजेंसी और ये जेंडर के लोग इतने मेंबर्स होने चाहिए। उसकी वजह से ज़्यादा के जो थे एक्स्ट्रा वो अपने आप निकल जाते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, जैसे मैचिंग, एलिमिनेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ कंडीशन, प्लानिंग, ठीक है। ये तीन थे, मैचिंग, एलिमिनेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कंडीशन। The participants are matched on their characteristics, उसके characteristics पे मैच किए जाते हैं। Unwanted variables may be controlled by elimination. Elimination के बेसिस पे निकाल दिया जा सकता है, like noise वगैरह, अगर मतलब कुछ भी चीज हम लोग रख सकते हैं उसमें। Consistency of condition in elimination is not possible. The condition may be made constant for the entire duration of experiment. तो ये कंडीशन अप्लाई की जा सकती है पूरे ड्यूरिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, पूरे के पूरे टाइम में।